Hello students, in programming for problem solving subject, today I will continue the last lecture video, that is functions in C. We have learned about what is a function, why we required function in our C program, and what are the advantages of user defined function. We know that there are two types of function present in C language. One of them is standard library function and another one is user defined function. In this lecture, we will discuss some different types of user defined function that can be categorized on the basis of number of argument and the value returned by these functions. On that basis, we can categorize the user defined functions into four parts. One of them is a user defined function with no arguments passed and no returned value. The second type is no arguments passed but a returned value we are getting. A third category where a user defined function have argument passed but no returned value. And the last one is argument passed and a return value. These are four types of user defined functions is defined on the basis of the argument that we are passing the argument as a parameter. Argument is also called as a parameter. So simply we can say if the function has a parameter, that is one category, and either the function returning a value, it is another category. So on the basis of these two, we have total four options are there on the basis of these two. We can categorize is as first one is argument. This thing is used to memorize the topic, and next one is return value, right? So either we can pass the argument or not. So for 0 indicates we have no argument and we have no return value. Second type, we have no argument but we have return value. Third category, we have argument but we have no return value. And the last one, we have argument and a return value is there. Alright. So it indicates the total four categories of user defined function. What are they? How we are using these category in our example. So here I am going to use these four types of user defined functions for a single problem. We are using the same problem so that we can easily compare the things, right? Okay. So आसानी से कंपेयर करने के लिए एक ही प्रॉब्लम लेते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं कॉमन. प्रॉब्लम क्या है हमारी? वी वांट टू चेक वेदर द इंटीजर नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इज प्राइम नंबर और नॉट. हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें यूजर कोई नंबर इनपुट करेगा और उस इनपुट किए हुए नंबर को हमें चेक करके ये बताना होगा कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, राइट? ओके. सबसे पहले वी आर यूजिंग वन कैटेगरी विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू. इस प्रोसेस में, इस एग्जांपल में हम कोशिश करेंगे कि केवल फंक्शन को कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद एज अ पैरामीटर उस फंक्शन में, किस फंक्शन में? यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम एक भी पैरामीटर इनपुट नहीं करेंगे. इनपुट करना मतलब पैरामीटर देना, एक भी पैरामीटर नहीं होगा और उसे कोई रिटर्न नहीं कराएंगे. पहले तो हम प्राइम नंबर के लिए लॉजिक समझ लेते हैं कि क्या होते हैं प्राइम नंबर. सपोज वी हैव अ नंबर से नम, वेरिएबल हमारे पास है जिसको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है. तो लॉजिक क्या कहता है हमारे पास कि इफ वी डिवाइड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर इज अ नंबर which is divisible by 1 and itself. That means कि 1 से लेके
उस नंबर तक के सारे नंबर से अगर हम डिवाइड करें तो एग्जैक्टली कितनी बार डिवाइड होना चाहिए? 2 टाइम्स। या इसी को दूसरी तरीके से कहा जाए, इफ वी आर डिवाइडिंग द नंबर इन बिटवीन 1 एंड नम, इनके बीच के किसी नंबर से अगर हम चेक कर लें तो टोटल कितनी बार डिवाइड होना चाहिए? 0 टाइम्स। दीज आर 2 सिचुएशन। एक सिचुएशन और आती है जो मैथमेटिकली हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि हमने ये देखा है कि अगर कोई नंबर हम ले रहे हैं, से नंबर इज 50 हमने एक नंबर ले लिया, तो वो कौन सी डिजिट होगी जिससे मैक्सिमम ये डिवाइड हो सकता है? दैट विल बी 50/2। सो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं 25। सो 1 से लेके 25 तक के नंबर से अगर ये 50 डिवाइड हुआ तो ठीक है, अदरवाइज 26 to 49 किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, राइट। सो एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं सो दैट कि नंबर ऑफ आइट्रेशन को मिनिमाइज किया जा सके। अदरवाइज आप चाहें तो सिंपल इस कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। ओके ओके, सो लेट्स टाइप द क्वेश्चंस with their answer. We have written this program. In this program, we have formed a prototype, that is a function prototype. Already मुझे याद है कि लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में बात किया हुआ था। हमें क्या चाहिए? नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो ऑब्वियसली जो फंक्शन का प्रोटोटाइप होगा वो क्या होना चाहिए? वॉइड टाइप का। वॉइड इंडिकेट करता है हमें रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि फंक्शन के नाम से पहले क्या लिखा रहता है? उसका रिटर्न टाइप। सो इफ वी नीड नो रिटर्न, देन द रिटर्न टाइप शुड बी void. दैट इज द फर्स्ट थिंग. नाउ यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन. ये नाम आपके ऊपर हो सकता है. एंड बिकॉज वी आर ऑल्सो सेइंग दैट देयर शुड नॉट एनी आर्गुमेंट पास्ड. सो कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, तो ये फील्ड आर्गुमेंट के अंदर भी ये क्या होगा? ब्लैंक होगा. एम्प्टी हम ब्लैंक क्लोज कर देंगे. तो यहां से कंपाइलर को ये पता चल रहा है कि ये जो चेक प्राइम नाम का फंक्शन प्रोग्राम में कहीं यूज होगा, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप भी कुछ नहीं है और इसके अंदर आर्गुमेंट भी कुछ नहीं है. राइट. अब एक मेन फंक्शन हमने डिफाइन किया जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ चेक प्राइम नंबर इस फंक्शन को कॉल कर लिया. राइट. अब इस चेक प्राइम नंबर फंक्शन को कॉल करने के बाद इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा बिकॉज इट इज ए यूजर डिफाइंड फंक्शन. सो डिफाइन करने के लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया void चेक प्राइम नंबर और एक इंटीजर वेरिएबल n ले लिया i. एक फ्लैग हमने सेट कर दिया 0 पे. अब एक नंबर हमने इनपुट किया. सबसे पहले वी आर प्रोवाइडिंग इनपुट टू आवर प्रोग्राम. नम में या n वेरिएबल में इनपुट कर दिया. अब देखिए ये लॉजिक यूज कर रहे हैं फ्रॉम 2 to n/2. इसका मतलब समझ लीजिएगा कि अगर कोई नंबर प्राइम होगा तो 2 से लेके n-1 तक के सारे नंबर से वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए. ये लॉजिक है. तो यही लॉजिक तो ये भी कहता है ना कि अगर 2 से n/2 तक के किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो आगे भी n/2 + 1 या उसके आगे से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा. ये जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इसकी बात कही थी. सो ये कॉन्सेप्ट यहां पर हमने यूज कर लिया. i की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर रहा है. i वर्क्स एज अ काउंटर जो वैल्यू काउंट करने का काम करेगा. यहां पे किस काउंटर को? रेंज प्रोवाइड करने के लिए. 2 से स्टार्ट किया. i <= n/2. यहां पर आप चाहें तो n भी रख सकते हैं, लेकिन यहां पर लेस देन का सिंबल रखना होगा. वो आपके ऊपर लॉजिक है, इससे कोई कंपल्सरी रूल नहीं है. आप अगर प्रोग्राम समझ रहे होंगे तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं. एंड बिकॉज हमें हर नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ i by 1. नाउ इफ n मॉडुलस i इज इक्वल टू 0, जो नंबर n हमने दिया है वो i क्या हो रहा है? i इज हैविंग अ रेंज फ्रॉम ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टू लेस देन और इक्वल टू n/2. ये रेंज i के लिए है.
इसी को यहां चेक कर रहे हैं, ये रेंज दे दिया। अब हर एक नंबर से चेक कर ले रहे हैं हम कि नंबर मॉडुलस आई, मॉडुलस क्या बताता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर 0 आ गया इसका मतलब क्या है, वो कंप्लीटली डिविजिबल है, राइट। और अगर ये कंडीशन होता है तो जो फ्लैग की वैल्यू थी इसको हम फ्लैग इक्वल टू 0 जो लिखा हुआ है इसको हम फ्लैग को 1 सेट कर देंगे, राइट, ओके। और इस लूप को जैसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद ये तो हुआ केवल ये चेक करने के लिए कि नंबर डिविजिबल है या नहीं किसी भी नंबर से, ओके। नाउ अगर ये फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है, फ्लैग की वैल्यू 1 कब होगी, जब ये डिविजिबल हो जाएगा, राइट। और डिविजिबल होगा इसका क्या मतलब है कि अगर डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। सो इफ दिस इज representing a value 1, that means the number is not prime, otherwise we can say it is a prime number. You got my point? और यहां पर प्रोग्राम अपने आप क्लोज हो जाएगा। जैसे ये लाइन यहां क्लोज होगी, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले ये सीक्वेंस पहले हेडर फाइल, देन मेन फंक्शन के अंदर आएगा, चेक प्राइम आया, चेक प्राइम नंबर, ये फंक्शन डाइवर्ट कर देगा कहां पर, जहां ये फंक्शन डिफाइंड है। ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा अप टू हियर, और जैसे ही ब्रैकेट क्लोज होगा देन प्रोग्राम कंट्रोल फिर से ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर, नेक्स्ट लाइन में, राइट, रिटर्न 0, आफ्टर दैट ये प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। सो अभी यहां पर आप देख रहे हैं इस जगह पर जो यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने यूज किया है चेक प्राइम नंबर, इसमें किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट भी नहीं है हमारे पास, और ना हम तो कोई वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं। दैट इज द वन कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी हम देखते हैं जिसमें आर्गुमेंट तो कोई पास नहीं कर रहे हैं लेकिन हम वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं। सेम प्रॉब्लम को इस टेक्निक से करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, गेट इंटीजर नाम का एक फंक्शन का प्रोटोटाइप हमने डिक्लेयर कर लिया, राइट। अब ये क्या कर रहा है, एक नंबर ले लिया हमने, फ्लैग ले लिया और आई ले लिया। याद करिए यही सारा काम हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन में किया था। अब n इज इक्वल टू गेट इंटीजर, ये वैल्यू हम कंसीडर करना चाहते हैं बाई कॉलिंग दिस फंक्शन, राइट। अब गेट इंटीजर नंबर फंक्शन काम क्या कर रहा है, अब इसका डेफिनेशन चेक करते हैं। यहां से प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर होगा कहां पर, जहां ये फंक्शन डिफाइंड है। ये क्या कर रहा है, सिर्फ इनपुट लेने का काम कर रहा है। हमने जो यहां पे इनपुट दिया है इंटीजर n और n में वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं, तो n केवल इनपुट लेने का काम कर रहा है। इनपुट लेने के बाद सेम लॉजिक यहां पर हमने लिख दिया, जो वैल्यू इनपुट कराया उसी को हमने रिटर्न करा लिया। रिटर्न कराने के बाद अब वो सेम कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए प्राइम नंबर यहां लिख दिया। तो अब देखिए यहां इनपुट तो कुछ नहीं दिया, दैट मीन्स अ फंक्शन विद नो आर्गुमेंट इज हियर, बट वी हैव वन रिटर्न स्टेटमेंट। Clear? So this is a category of user defined function where we are not passing any argument but returning some value. Okay? Third one is function with argument but no return value. In this case, यहां देख लेते हैं, again we are using the same problem. इंटीजर नंबर हमने यूज कर लिया, अब इनपुट हमने यही करा लिया, देन चेक प्राइम एंड डिस्प्ले, ये फंक्शन ही कॉल कर लिया। प्रिंटिंग काम हमने कहां कर लिया है, जो अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन है जहां उसका डिफाइन कर रहा है वहां पर। इनपुट करने काम हमने मेन में कर लिया, राइट। अब उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया, यहां से कंट्रोल गया कहां पर, यूजर डिफाइंड फंक्शन में। अब इस फंक्शन के अंदर सेम कोड हमने लिखा हुआ है फ्लैग के लिए, और अगर ये फ्लैग की वैल्यू 1 होती है देन नंबर इज प्राइम, अदरवाइज नॉट प्राइम, राइट। सो इन दिस मैनर you can see we are passing a parameter, we are providing argument in our function, but we are not returning any value. So this is called third category as argument passed in function but having no return value. Clear? And the last one is argument passed and a return value. Again we are using the same problem.
to find whether the number is a prime number or not. In this case, we are again creating an integer variable n and a flag. We are providing the input to number. Now we are just calling a function check prime number, that is user defined function, and by calling this one, program control transfer to this point. Now the value of n, that is transfer here, will set the value of n here. Now if n is divisible by I, so it will return 1, otherwise it will return 0. क्लियर? सो ये पूरा लूप रन करता रहेगा. जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एक बार भी डिवाइड हुआ, तुरंत यहां से प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, राइट? और ट्रांसफर हुआ तो रिटर्न वैल्यू तो हमें मिल रही है. रिटर्न एक बार 1 करा रहे हैं या 0 करा रहे हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन द कंडीशन. सारे नंबर से चेक कर रहा है. अगर किसी भी एक नंबर से डिविजिबिलिटी हो जाती है तो जस्ट 1 रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन पे यहां पर, राइट? और यहां फ्लैग की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी? 1. और if flag is equal to 1, then we can print the number is not a prime number, otherwise it is a prime number, right? So this is the 4 type of user defined function. Now the question arises, why we are studying this one, right? It is totally depend upon programmer which type of approach he wants to apply in their program, right? There is no foundation. आप किसी भी एक फील्ड में किसी भी एक तरीके से अगर प्रोग्राम कर लेते हैं, अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड ना हो क्वेश्चन में. और अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं मिला आपके पेपर से रिलेटेड जिसमें स्पेसिफाई किया गया हो कि फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो आपको बनाना है वो कैसे बनाना है. आप किसी से भी कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द फंक्शन. And in next video we will discuss about first of all pointer, and then after we will discuss the recursion. Okay, thank you very much.